related to FMS when we are studying the chapter of FMS. So this is the question. Describe FMS or write a short note on FMS. So definition means we are writing it in a 2 marks definition. The components, FMS components. What are the main FMS components? You will further add it, but try to tell minimum 3 or 4 points. So what are those 3 or 4 points? First is the automatic machine tool. Okay, so FMS is a, again you are revising the definition, that FMS is a automated central computer controlled manufacturing system. Again a different way of defining. Okay, so there is no one standard definition of FMS. You can write any definition, but it should be fully understandable also. It is composed of automatic CNC machine, material handling system and computer control system. Again repetition of the above paragraph. So better learn the components one time. So what is that? Machine tool is the first component. So what do you mean by machine tool? ये आपको पहले से clear है. Machine tool is the device which is performing the machining related operation. Now what are the types of machine tools? ये सब आपको familiar है because in CNC the chapter number 1 was related to types of machine tool. Okay, the application of CNC machines जो आपको समझाई थी, तो आपको बताया था that CNC can be applied, the concept of CNC can be applied to a turning machine, then it is known as a turning center. It can be applied to a milling machine, then it is known as milling center. Okay, so turning machine is there, milling machine is there. और वर्कस्टेशन कितने टाइप के हो सकते हैं? टर्निंग, मिलिंग, और कोई नाम? ये हो गए मशीनिंग रिलेटेड, मशीनिंग सेंटर. अदर वर्क स्टेशन हो सकते हैं जहाँ पर मशीनिंग नहीं हो रही है, ठीक है, बट स्टिल दे आर, ठीक है, अदर मशीनिंग स्टेशन जहाँ पर मशीनिंग नहीं हो रही है, स्टिल दे आर नोन एज वर्क स्टेशन. दे आर नोन एज असेंबली, ठीक है, जहाँ पर कोई भी असेंबली रिलेटेड वर्क हो रहा है, 2 पार्ट्स ज्वाइन हो रहे हैं, मल्टीपल पार्ट्स ज्वाइन हो रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ रोबोट्स, रोबोटिक आर्म्स लगाकर, ठीक है, 2, 3, 4 पार्ट्स आर बीइंग जॉइंड, असेंबली वर्क स्टेशन उसे बोलते हैं. देन इंस्पेक्शन वर्क स्टेशन में the parts or the work pieces dimensions are being checked. Okay, so again this is a type of workstation. So mention 3 to 4 types name, that is sufficient. And if you are not writing anything, then simply write that the machine tool include CNC or NC machine tool, because we are studying CNC. Okay, and CNC in itself is a CNC lathe होगी machine, या CNC milling machine होगी. So CNC machine tool with automatic tool changing capability, measuring machine and washing machines. ये general names बता दिए हैं all types of machine tools के लिए. Okay, the workstation can be CNC machines, it can be a measuring workstation also. So these are, again washing machines are the example, are the application where automation is being applied, because वहाँ पर क्या होता है, एक पहले से प्री डिफाइंड प्रोग्राम होता है कि अगर आपने वूलन क्लोथ्स पुट करे हैं, ठीक है, तो वूलन क्लोथ्स से रिलेटेड कितना टाइमिंग के लिए मशीन रन होगी, क्या साइकिल है, वो आप बटन प्रेस करोगे W, ठीक है, या जो भी सिंबल वहाँ रहेगा, और फिर वो मशीनिंग कम्प्लीटली ऑपरेट होगी, जो भी उसकी प्रोसेसिंग होती है. सो ऑटोमेशन वहाँ भी प्रेजेंट है, बट यू आर मोर फोकसिंग ऑन द CNC मशीन पार्ट. देन देयर इज़ अ ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम. CNC मशीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम CNC मशीन ही ड्रॉ करते हैं यहाँ पर. सपोज दिस इज वन मशीन, ठीक है, देन अनदर मशीन इज देयर, ठीक है, देन अ थर्ड टाइप ऑफ मशीन इज देयर. सो व्हाट इज हैपनिंग, यू आर मेकिंग द वर्क पीस टू मूव फ्रॉम वन वर्क स्टेशन टू अनदर वर्क स्टेशन, ठीक है, एक वर्क स्टेशन से वर्क पीस आ रहा है दूसरे वर्क स्टेशन पे, देन दूसरे से जा रहा है तीसरे पर. तो इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? मटेरियल हैंडलिंग, बिकॉज वी आर हैंडलिंग द मटेरियल, ठीक है, आप मूव कर रहे हो. हैंडलिंग मीन्स यू आर मूविंग द मटेरियल फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन. यस, इज दिस डेफिनेशन क्लियर टू यू? ये एक वाइवा का क्वेश्चन हैं, ठीक है, या क्वेश्चनेयर में देखना स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइमरी मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम एंड सेकेंडरी मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम.
ठीक है, तो आप वहाँ पे पूरा डिफाइन करोगे मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। अभी मैं शॉर्ट में उसे लिख रही हूँ MHS, मटेरियल हैंडलिंग system. So what is the definition? Material handling system means a material handling system is used to transfer workpiece. Okay, WP is for workpiece or part, part from one workstation. You can write workstation or station or a machine tool, anything you can write workstation to another workstation. So simple definition है ये, लेकिन स्टूडेंट्स को एकदम से क्लियर नहीं होती. MHS मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम इज अ टफर टेक्निकल टर्म and this definition is a very easy. We are transferring workpiece from one workstation to another workstation by the help of a material handling system. Okay, now how can you transfer this material? कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप बता सकते हो उसमें? यस, कैसे कर सकते हैं? एक तो आप कर सकते हो मैनुअली. आपने यहाँ पर कोई वर्कर पोजीशनड है, ठीक है, वो वर्कर वर्क पीस को लेकर, ठीक है, मूव कर रहा है वर्क स्टेशन नंबर 1 से वर्क स्टेशन नंबर 2 तक. सो ही इज डूइंग द मटेरियल हैंडलिंग, बट दिस टाइप ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इज नोन एज मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग. यहाँ आप ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग की टर्म को रिप्लेस करके क्या लिखोगे? मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम दैट इज डन बाय अ वर्कर और ए ह्यूमन बीइंग. But in automated material handling system, that is not done by a worker or a human being. So what is doing? A different device is connected like a conveyor belt. जैसे आपने मेट्रो में देखा है, ग्रुप टेक्नोलॉजी पढ़ाते समय भी मैंने एग्जांपल क्रिएट किया था, ठीक है. मेट्रो में जो भी आपने आइटम्स यहाँ पे रखे हैं, एक कन्वेयर बेल्ट पर आप रखते हो, ठीक है, और एक जगह आप उसको रखते हो, अपना बैग यहाँ पे आपने रखा, देन दैट इज मूविंग एट एन अनदर पोजीशन. यस, इज इट और नॉट? तो ये आपको मीनिंग क्लियर हो गया है, ठीक है. नोटपैड पे आप मेन हेडिंग्स में लिख रही हूँ. दैट MHS definition used to transfer workpiece or part from one workstation to another workstation. It can be asked in a 2 marks question or a viva. Otherwise it is generally not asked because it is considered to be as a tougher part. That what is primary. Then the next part is what is primary MHS. प्राइमरी मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम क्या होता है? व्हेन सिंपल डेफिनेशन है, प्राइमरी मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम इज यूज्ड टू ट्रांसफर वर्क स्टेशन फ्रॉम वन वर्क पीस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ओके, तो ये जो आपने डेफिनेशन लिखी है वो प्राइमरी मटेरियल की ही थी, ठीक है. तो आप इसे दोबारा से लिख सकते हो. दैट प्राइमरी MHS इज रिस्पॉन्सिबल फॉर moving means again transfer, ठीक है. So transferring the workpiece from one workstation to other workstation. Then there is a definition. What is a secondary material handling system? Secondary material handling system means it is transferring the work or it is moving the workpiece or the part from the primary, ठीक है. ये लेता है वर्कपीस को from the primary material handling system to any other workstation, okay, or to any other machine tool or any processing station. You may take a screenshot once it is written processing station or any processing station. Okay, plus it has one more feature, that it can reorient the workpiece and it can
reorient the workpiece. So a number of points are there. Secondary material handling system बहुत डिस्क्रिप्टिव है, बहुत ज़्यादा थ्योरी है, बट इन योर सिलेबस आपको डेफिनेशन क्लियर करनी है that it is moving the workpiece from primary material handling system to any machine tool or any processing station, and it can reorient the workpiece also. Reorient क्यों करते हैं? Because the surface on which machining has to be done can be placed here. Okay, suppose this is the surface on which machining is to be done, and we are keeping the workpiece from one point to another point in this similar manner. Then, and the tool is lying above, so the tool is not facing the surface जहाँ पर machining होनी है. So what will we do? A secondary material handling system will try to reorient this वर्कपीस. ठीक है, इसकी पोजीशन को चेंज करेगा और उस सरफेस को ऊपर प्लेस करेगा जहाँ पर मशीनिंग होनी है. तो सेकेंडरी मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के पास ज़्यादा कैपेसिटी है, ज़्यादा एबिलिटी है वर्क करने की, और प्राइमरी सिर्फ मूव कर सकता है. जैसे कन्वेयर बेल्ट है, आपने मटेरियल रखा एक जगह से दूसरी जगह वो मूव हो गया. ठीक है, लेकिन कन्वेयर बेल्ट के साथ बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यूज़ हो सकती हैं. कन्वेयर बेल्ट हमेशा याद रहता है बिकॉज वी हैव वॉच्ड इट इन द इंडस्ट्री. तो ये आपको क्लियर हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है. द सेकेंडरी इज ट्रांसफरिंग द वर्क फ्रॉम द प्राइमरी स्टेशन, ठीक है, टू द मशीन टूल और एनी अदर प्रोसेसिंग स्टेशन जहाँ पर भी उसको मशीनिंग होनी है, या अदर प्रोसेसिंग स्टेशन मीन्स कोई असेंबली रिलेटेड वर्क भी हो सकता है. हमेशा मशीनिंग रिलेटेड वर्क नहीं होता वर्क स्टेशन पे, असेंबली रिलेटेड वर्क भी हो सकता है. इसलिए आप दोनों चीज़ें लिखोगे, एनी मशीन टूल और एनी प्रोसेसिंग स्टेशन, एंड इट कैन रीओरिएंट द वर्क पीस ऑल्सो इफ रिक्वायर्ड. ठीक है, इफ रिक्वायर्ड इट कैन रीओरिएंट. ऑल्सो इट इज एक्टिंग एज अ बफर स्टोरेज. ठीक है, सेकेंडरी मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम एक बफर स्टोरेज भी क्रिएट कर सकता है बिकॉज इट इज स्टोरिंग द वर्क पीसेस टू मिनिमाइज द वर्क चेंजिंग टाइम एंड मैक्सिमाइज द स्टेशन यूटिलाइजेशन टाइम. ठीक है, तो आप मिनिमम इतना पॉइंट्स भी याद कर रहे हो, ठीक है, इतना पैराग्राफ भी याद कर रहे हो, दैट इज सफिशिएंट फॉर द डेफिनेशन पार्ट एफएमएस. तो यहाँ आपसे पूछा गया है डिफाइन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ एफएमएस, जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं. ओके, वी कैन ऑल्सो डिलीट दीज लाइन्स बिकॉज दिस इज कंप्लीटली फिल्ड. ठीक है, आगे हम इसे डिटेल डिलीट करेंगे. अभी क्या है, यहाँ पर एक मार्कर है ये. ओके, दिस इज अ ड्राइंग टूल, दिस इज अ हाइलाइटर. ठीक है, देन देयर इज अ कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम. ओके, ये बहुत लाइट है हाइलाइटर, मार्कर ही ठीक है. कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम. ओके, सो दीज आर थ्री मेन कंपोनेंट्स. कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम क्यों यूज होता है? बिकॉज it is used for any job planning, any scheduling, any monitoring, any machine control of the FMS. because इतने सारे components interconnected है, तो ये सब कुछ planning, scheduling आपने किया हुआ है. ठीक है, then machine control करना that is not feasible by human being, so that is everything is synchronized. So it controls the synchronization of material handling system with the machining center. This is the main advantage या main function of the computer control system. So again you will write here in the PDF or screenshot. Now I am not writing that it is controlling the synchronization. Okay, synchronization of what? Of the movement of the workpiece or of the material handling system with the machining center. So these are three main components. Apart from that, what can happen? CNC machine tool. It is not necessary आप CNC machine tool को ही include कर रहे हो, so better to write a workstation. Workstation can be anything, जो मैंने अभी आपको define कराया था. Workstation can be machining workstation or non-machining like assembly workstation. Then the another component is material handling system, MHS. Okay, number 2. यहाँ आप numbering भी कर देना अपने notes के लिए. 1,
is workstation. Okay, 2 is material handling system. Now the definition is clear to you. When we are moving workpiece from here to there, we are not using the help of a human being, we are using a conveyor belt or a primary material handling system. Then the third component is the computer control system. It can be a variety. Okay, a central computer plus a combination of microcomputers are here, so everything is being synchronized here. Then human being can be there for operating the computer system. Okay, definitely they will be operating the computer system, तो वो भी आप mention कर सकते हो. In majority of the books there is this point is not included. Okay, so human beings can operate the computer system, they can do the programming related work. Okay, so this is the next assignment question. What are the types of FMS layout with diagram? So this is the main question. Apart from it, a list of question is there जो आपने देखा है class work में. What are those? Define FMS. We have already defined that. Describe the components. We have described the components. Then mention the advantage and disadvantage of FMS. We have tried to provide it here. We will come to it. Yes, this is the main point. What are the advantages and disadvantages? Let us study. The part accuracy will be more. So one point is there that this is a very faster process. Okay, the low cost changes are there from one workpiece to another, which will improve capital utilization. Then there is a number of workpieces which are produced is very high, so output is very high here. Consistent and better quality is the main point. Then we are getting savings from indirect labor, reduced errors are here. So what is it the meaning? Because the worker is now getting a minimum work. Okay, human being का work minimum हो गया है, तो error करने के chances minimum हो गए हैं. Machine is doing it, robotic arms are placed, तो number of errors are less, number of repairs less होंगी, number of rejected work pieces less होंगे. So this is a advantage part for us. Similarly, you can write more number of advantages here. Now what is the disadvantages? You can further write it. There is a limited ability to adapt to changes in product or product mix. So we have to change the types of the FMS or layout of the FMS according to the requirement. इसीलिए क्वेश्चन जो मैंने पुट किया था, that layouts will be studied first, then you will try to understand these disadvantages. Okay, advantages अभी आपको क्लियर हो गई है. डिसएडवांटेजेस स्टडी करने के लिए लेआउट्स आपके लिए इंक्लूड कराए जाएंगे. ओनली देन यू कैन गेट दैट. सो फॉर दैट अगेन go through this PDF. This is the general diagram of a FMS. This is written a typical FMS with 2 machine cell, 2 machine tool and a robo for automated material handling. So this is written that this FMS is having, इस FMS में 2 machine tool है और एक robo है automated material handling के लिए. इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे जब FMS का डायग्राम बनाने के लिए आएगा तो आप सिर्फ यही वाला बना दो कि यही वाला सही है, बुक में यही पब्लिश था या मैम ने यही पढ़ाया. नहीं, आपके FMS में एक मशीन टूल भी हो सकता है, ठीक है, 2 मशीन टूल भी हो सकते हैं. ये हमने क्लास में स्टडी किया था ग्रुप टेक्नोलॉजी में कि एक सिंगल मशीन सेल में 1 वर्क स्टेशन होता है, ठीक है. देन यहाँ पर 2 वर्क स्टेशन प्रेजेंट है, 2 मशीन टूल प्रेजेंट है. इट कैन ऑल्सो हैपन. ओके, सो हेयर वी आर गेटिंग अ रोबोटिक आर्म ऑल्सो. रोबोटिक आर्म प्रेजेंट भी हो सकती है और बिना रोबोटिक आर्म के भी वर्क फिनिश किया जा सकता है. तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल आप कोई सा भी ड्रॉ यहाँ कर सकते हो. एनी यू कैन ड्रॉ एनी लेआउट हेयर इफ अ जनरल डायग्राम इज आस्क्ड. देन दिस इज द meaning that 2 machine tools are there and a robo is used for automated loading and unloading. that यहाँ पर जो वर्क पीस प्लेस्ड है, ठीक है, उसे जब हमें मूव करना है इस वर्क पीस, इस मशीन टूल से इस वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन तक, एरो को रीड करना आना चाहिए. इस पूरे चैप्टर में एरो को रीड करना आ गया तो आपको 50% तो लेक्चर समझ में तभी आ जाएगा. दैट
यहाँ से एरो जा रहा है यहाँ तक, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है कोई भी वर्क पीस, तो वर्क पीस भी शो कर देंगे कि दिस वर्क पीस इज मूविंग हेयर फ्रॉम हेयर टू दिस पॉइंट। लेकिन वर्कर मूव नहीं कर रहा, कन्वेयर बेल्ट मूव नहीं कर रही, तो क्या मूव कर रहा है? रोबोटिक आर्म। ओके, देन देयर इज अ वर्क पीस ट्रेवल ऑन द ऑटोमेटिक कन्वेयर। यहाँ पे एक ऑटोमेटिक कन्वेयर बेल्ट लगाई हुई है वर्क पीस की मूवमेंट के लिए, एंड वन वर्क पीस को रोबोटिक आर्म क्या कर रहा है? पहले यहाँ से प्लेस करेगा मशीन टूल पर, देन मशीन टूल यहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी, तो मशीन टूल 1 से मशीन टूल 2 तक ले आएगा। ये सब कुछ पढ़ना है, रोबोटिक लेआउट इन्होंने बनाया हुआ है। देन देयर इज अ टाइप ऑफ FMS। अगेन दिस क्वेश्चन इज रेयरली आस्क्ड, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको आंसर करना आना चाहिए, क्योंकि ग्रुप टेक्नोलॉजी में मैंने आंसर कराया था, जो भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। ठीक है, अब आप रिपीट करो, सिंगल मशीन सेल। एवरी टाइम आई एम रिपीटिंग, जो भी एक प्रीवियस चैप्टर में याद करते हो, दूसरे चैप्टर में वो सेम पार्ट यूज हो जाता है, सेम थ्योरी, तो बहुत ही एडवांटेज है आपको। सेकंड सेशनल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इजी है। ग्रुप टेक्नोलॉजी में हमने याद किया था कितने टाइप ऑफ सेल होते हैं, तो वो सेम आंसर है, सिंगल मशीन सेल हो सकता है। नेम से क्लियर है, सिंगल मशीन मीन्स ओनली वन मशीन और वन वर्क स्टेशन इज हेयर, so you will write it is consisting of single CNC machine along with any automated material handling system, single machine cell। ठीक है, then what is a flexible machine cell, ये डिफाइन हो रहा है। flexible machine cell में आप क्या लिखोगे? 2 or 3 machine cell or workstation with a automated के लिए अभी हमने कोई सिंबल यूज नहीं करा, जनरली क्या यूज होता है? AUT, ऑटोमेटेड। पूरा वर्ड लिखने की जगह लिख देते हैं AUT, ऑटोमेटेड मटेरियल। मैम मशीन सेल एंड वर्कस्टेशन दोनों सेम चीज है? यस, मशीन सेल जो है, मशीन सेल तो उस पूरे का नाम है जिसमें मशीन टूल भी आ गया और मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम भी आ गया। ठीक है, MHS और वर्कस्टेशन दोनों को मिला के नाम दे देते हैं मशीन सेल। ठीक है, क्लियर है? आपका क्वेश्चन भी अच्छा है, क्योंकि ये आया था ग्रुप टेक्नोलॉजी के लेक्चर से, उस दिन मैंने स्टडी कराया था। रिपीट करा रही हूँ एक बार कि एक सेल, इस सेल में क्या प्रेजेंट होना चाहिए मशीनिंग के लिए? आप बताते हो कि एक तो मशीन टूल होना चाहिए। अब आप इसे MT लिखो या वर्क स्टेशन लिखो, वट एवर, CNC मशीन बोलो, या हो सकता है असेंबली होनी हो तो असेंबली वर्क स्टेशन, प्लस एक वर्क पीस की मूवमेंट के लिए। वर्क पीसेस बहुत सारे होते हैं, 1 और 2 नहीं होते। ठीक है, तो वो 100, 1000, 2000, ये भी क्वेश्चन है आपका कि मास प्रोडक्शन क्या होती है, बैच प्रोडक्शन क्या होती है, और जॉब प्रोडक्शन क्या होती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको इसके साथ क्या रखना पड़ेगा? एक MHS, कि जो उसकी मूवमेंट करा दे। ठीक है, और ये इस पूरे का नाम क्या हो गया? सेल। सो FMC का मतलब क्या हो गया? 2 और 3 मशीन टूल्स होंगे इसके बीच में, और एक ऑटोमेटेड MHS भी होना चाहिए। तो अब आप देखते हो इस डायग्राम में है या नहीं है। एक तो मशीन टूल ये रहा 1 नंबर, ठीक है, 2 नंबर ये रहा, 3 नंबर ये प्रेजेंट है, और बीच में क्या प्रेजेंट है? ये U शेप का। इसका नाम क्या होगा? कह तो आप कन्वेयर बेल्ट रहे हो, ठीक है, लेकिन कन्वेयर बेल्ट किसका टाइप है? ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम का। ठीक है, प्राइमरी मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम का एग्जांपल है। यस और नो? आपका क्लियर हो गया डाउट? इस डायग्राम की जगह आप कोई दूसरा डायग्राम भी बना सकते हो, लेकिन ऐसे भी बना सकते थे, रेक्टेंगल्स 1 2 3 वर्क स्टेशन बना दो, और बीच में एक पार्ट हैंडलिंग के लिए, मटेरियल हैंडलिंग के लिए एक MHS प्लेस कर दो। अल्टीमेटली आपको क्या कोड वर्ड याद रहेगा? दैट इट इज हैविंग 2 और 3 MC, या मशीन टूल लिखो, इट इज हैविंग। अच्छा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक थी, इसलिए आपने क्वेश्चन रेज किया, गुड क्वेश्चन। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक क्या है कि MC लिखा था मैंने, MC का मतलब था मशीन सेल, लेकिन मुझे लिखना था MT, इट इज हैविंग 2 और 3 मशीन टूल। या मशीन टूल नहीं लिखना चाहते तो आप ये भी लिख सकते थे, 2 और 3 वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन का अभी तक तो कोई सिंबल मैंने लिया नहीं है, लेकिन WKSTN आप लिख सकते हो, 2 और 3 वर्क स्टेशन विद ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। तो SMC की क्या डेफिनेशन लिखोगे? सिंगल मशीन सेल। सिंगल मशीन सेल में क्या होगा? सिर्फ 1 वर्क स्टेशन होगा। 1 वर्क स्टेशन, अगर छोटी सी इंडस्ट्री है, ठीक है, छोटा सा ही स्पेस अवेलेबल है, 1 वर्क स्टेशन होगा उसमें, विद ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। इस पे आपने क्या लिखना है? दैट इट इज हैविंग 4, 3 से भी ज़्यादा इसमें वर्क स्टेशन होंगे, तो 4 और मोर CNC मशीन और वर्क स्टेशन
ठीक है, विच आर कनेक्टेड बाय ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। और सिर्फ इतना ही नहीं होगा, साथ में एक कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम भी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने सभी चीज़ों को लेबल कर दिया अब, दैट दिस इज 1 वर्क स्टेशन, 2 3 4। एक लेवल और आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को, इन लाइन लेआउट। व्हाट इज मैम मशीन टूल का मतलब यही है ना कि मशीन वर्क स्टेशन? हाँ, ठीक है, ये आपने मतलब सही दोनों का मतलब सेम ही है? हाँ सेम है। जो मैंने यहाँ पे लिखे थे ना कंपोनेंट्स ऑफ एफएमएस, तो कंपोनेंट्स ऑफ एफएमएस में आप डिस्क्राइब कर सकते हो, दिस वर्क स्टेशन कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स। मैंने बोला था, लिखा नहीं था, दैट इट कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स। मैनी टाइप्स में कौन सा टाइप, या तो वो मशीनिंग टूल वाला हो, मशीनिंग वर्क स्टेशन हो। ठीक है, पूरा आप लिख भी सकते हो, ड्यू टू राइटिंग मैं नहीं लिख रही, स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से मैं नहीं लिख रही, ड्यू टू। ठीक है, तो आप ध्यान दोगे, ड्यू टू मशीनिंग, जो जिस पर मशीनिंग हो रही है उसका नाम क्या होगा, मशीनिंग वर्क स्टेशन। और मशीनिंग वर्क स्टेशन का कोई नाम बताओ, अभी तक आपने पढ़ा है कहीं? तो आपने पढ़ा हुआ है सीएनसी मशीन, एनसी मशीनिंग, मशीनिंग ही तो होती है इन पर। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्टली कुछ भी लिख सकती है बुक, मशीनिंग वर्क स्टेशन लिख सकती है, वर्क स्टेशन लिख सकती है, सीएनसी मशीन लिख सकती है, ठीक है, एनसी मशीन लिख सकती है। दूसरी टाइप क्या होती है, अदर टाइप होती है नॉन मशीनिंग वर्क स्टेशन। ठीक है मैम इसी को मशीन सेल भी बोल रहे हैं, है ना? मशीन सेल में तो वर्क स्टेशन भी आएगा और साथ में ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम एमएचएस भी आएगा। मतलब वो पूरा होल सिस्टम आ जाएगा, है ना मैम? हाँ, होल सिस्टम जो हो गया, एक होल सिस्टम जिसमें मशीनिंग हो रही है, उसको कहते हैं मशीन सेल। ठीक है, उस दिन मैंने लैब में आपको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज दिखाए थे कि देखो लैब में यहाँ पर एक कैबिन बना हुआ है, उसको अज्यूम अच्छा, कर वो लो, वाला। हाँ, हाँ हाँ हाँ। टर्निंग एरिया मान लो, इसको मान लो मिलिंग एरिया। तो अभी आपको ऐसे अज्यूम करना है कि यहाँ पे एक वर्क स्टेशन रखा हुआ है, ये दूसरा वर्क स्टेशन है, ये तीसरा वर्क स्टेशन है। कि अब देखो यही रिपीट हो रहा है इन द इनलाइन लेआउट, द मशीन टूल्स एंड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, मैं शॉर्ट में बोलती हूँ एमएचएस। ओके, या इसे मैं वर्क स्टेशन भी बोल सकती थी। तो डिफरेंट बुक्स है, आप, मुझे नहीं पता आप जेएस नारंग फॉलो करते हो तो वहाँ वर्क स्टेशन लिखा है, यहाँ पे लिखा है मशीन टूल, तो कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप कंपेयर करोगे, मार्क्स मेरे कम है इसके ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी लिखो, यहाँ लिखा है मशीन टूल एंड एमएचएस इज अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो मशीन टूल्स है, ये वाली M2 3, दे आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। और क्या हो रहा है, एक एमएचएस भी अरेंज्ड है स्ट्रेट लाइन में, तो ये एमएचएस स्ट्रेट लाइन में अरेंज्ड है। ठीक है, तो इसी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मशीन टूल भी प्लेस्ड है। नाम से डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट लेआउट फॉलो करती है, वो सब वाइवा के क्वेश्चन है। अभी आप सिर्फ डेफिनेशन समझो, इन इनलाइन लेआउट मशीन एंड एमएचएस दे आर अरेंज इन अ स्ट्रेट लाइन, इतना सा आंसर है। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? इन लाइन मैं पूरा पूरा नहीं लिखूंगी, मैं बार बार बोल रही हूँ, ऐसे लेक्चर कंप्लीट नहीं होगा, एंड नहीं होगा, 15 मिनट्स में हमें करना है ये इनलाइन लेआउट। ठीक है, आप यहाँ पे एक लाइन की डेफिनेशन लिखोगे, दैट द मशीन्स एंड द मटेरियल handling system, automated material handling systems, they are placed in a straight line। ठीक है, एक सिंगल लाइन, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स आर रिटन इन डिफरेंट बुक्स बट मीनिंग इज सेम। अब इतना ही आप बता दोगे, सो दैट इज नॉट सफिशिएंट कि आपने 4 में से 4 ले लिए, दे आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, वो तो डेफिनेशन में लिखा हुआ मिला था आपको इन लाइन, तो आपने अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया उसमें। ठीक है, तो अब आप अपनी तरफ से क्या ऐड करोगे, एक एक वर्ड को डिफाइन करोगे यहाँ से, दैट मशीन्स आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, देन दिस वर्क फ्लो, इसे आप डिफाइन करोगे, दैट दिस वर्क पीस इज मूविंग फ्रॉम वन वर्क स्टेशन, एक वर्क स्टेशन पे से, टू दी अनदर वर्क स्टेशन। ये ब्लैक कलर यहाँ आ गया है, देख रहे हो? तो आप एरो भी लगा सकते हो, दिस इज मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, लेकिन एरो लगाओगे तो स्ट्रेट, क्योंकि ऐसे गोल घूम के नहीं जा रहा वो यू शेप में, वो कैसे जा रहा है, सीधा जा रहा है। तो ऐसे एक आप एरो दिखाओ कि दिस इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो दूसरी लाइन आप क्या लिखोगे, वर्क पीस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दूसरी लाइन लिख रही हूँ, आप अपनी तरफ से लिखते रहना, वर्क पीस इज मूविंग, ठीक है, फ्रॉम वर्क स्टेशन टू अनदर वर्क स्टेशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर इज, ठीक है, वो तो हो ही रहा है, स्ट्रेट लाइन में हो ही रहा है। ठीक है, तो आपने नया वर्ड क्या ऐड करना है, एंड देयर इज अ नो बैक फ्लो। अब वर्क पीस वापस नहीं आ रहा है, ठीक है, उस दोबारा मशीन पर नहीं आ रहा है, वो आगे चला गया। ठीक है, देयर इज नो बैक फ्लो ऑफ द वर्क पीस। इसके अलावा भी आप मेंशन कर सकते हो, इट इज सिमिलर टू ट्रांसफर लाइन, देन एमएचएस आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन।
दे आर मूविंग, वर्क पीस इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, देयर इज नो बैक फ्लो। एमएचएस जो यहाँ यूज़ होता है वो कन्वेयर होता है या एजीवी होता है। तो एजीवी होता है तो एजीवी का डायग्राम आपने नहीं बनाया, ये तो बना रखा है कन्वेयर का, तो एजीवी का इसने शो कर दिया, इसलिए ये पीडीएफ अच्छी है। बट ठीक है, मैम वो जो कन्वेयर वाला है, मैम एक बार हाँ दिखाना फर्स्ट वाला। देखो हाँ मैम, ये वाला लौट के फिर वहीं तो आएगा ना, मतलब जैसे अगर ये अनलोडिंग पे शुरू हो रहा है तो अच्छा अनलोडिंग लोडिंग, वाली चीज वापस लौट के वहीं तो आएगी ना लोडिंग पे, मतलब कन्वेयर तो लौट के वही आएगा ना, अच्छा पार्ट हट कन्वेयर जाएगा। चल रहा है ये कह रहे हो आप? हाँ कन्वेयर इज मूविंग। हाँ तो वो तो लूप ही हुआ ना मैम। लूप नहीं हुआ, जैसे यहाँ से लेके कन्वेयर यहाँ तक प्लेस हो गया, अनलोडिंग के हाँ बाद वो एक डिफरेंट यहाँ से आ रहा है ना, ये भी आप डिफाइन कर सकते थे, यहाँ नहीं लिखा दैट दे स्टार्टिंग वर्क पीसेज आर रॉ मटेरियल on which no machining is done, the loading work they are being loaded on this। ठीक है, again the completed work pieces when the machine is complete and machining is done completely, ठीक है, they are being unloaded here for to a different station। इनलाइन लेआउट हाँ जो है वो लूप में भी काम करता है। नहीं काम नहीं करेगा ना, देखो यहाँ से वर्क मैम पीस अगर आया है, लेकिन मैम एक अगर लाइन में आया, प्रैक्टिकली सोचा ठीक है अगर एक, प्रैक्टिकली सोचा जाए तो जो बेल्ट होगी वो वापस लौट के वहीं तो आएगी, जैसे मेट्रो स्टेशन पे लगा होता है जब हम चेकिंग के लिए देते हैं बैग, अपना बैग या जो भी है, तो मैम वो लेकिन लौट के वो आपने बार यहाँ बार से आता रहता देखो है। ना, अनलोडिंग वर्क स्टेशन का काम क्या है, एक और वर्क स्टेशन लगा रखा है अनलोडिंग। अब ये इस वर्क पीस को, ये आपका क्वेश्चन भी अच्छा है, वैलिड है, क्या करेगा देखो, यहाँ से वर्क पीस को पिक कर लेगा और जहाँ हम्म। पर उसे फाइनली जाना है वहाँ ले जाएगा। तो अब ये वर्क पीस वापस नहीं आएगा इस पे कभी, समझ अच्छा गए? वो लूप इसलिए वहां पे लूप को इस तरह से डिफाइन किया कि मतलब वो वर्कपीस दोबारा वहां लूप रिवर्क होने लूप के लिए नहीं, आएगा। आपका क्वेश्चन अब मैं समझ गई, आप लिखोगे देयर इज अनलोडिंग वर्क स्टेशन हेयर, लिखा है ना ऊपर लोडिंग हाँ। अनलोडिंग, लेकिन बुक ने डिफाइन नहीं किया कहीं से, करना चाहिए था, ठीक है आप, तो इसलिए आप बताओगे द अनलोडिंग इज डन, ठीक है, देन दैट वर्क पीस इज गोइंग टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। एक लाइन यहाँ मैम आप तो लिख लूप सकते हो। लूप वाला कैसा होता है सिस्टम? ये समझ में आ गया तो लूप भी आ जाएगा, समझ गए? लूप लेआउट स्टडी करो, लूप लेआउट में क्या हो रहा है, सिंपली द मशीन्स एंड द एमएचएस दे आर अरेंज इन अ लूप, वो लूप में अरेंज हैं विद द ऑटोमेटेड एमएचएस। ठीक है, तो ये देख लो आप, ये डायग्राम है लूप लेआउट का। तो ये मैंने जो सर्कल ड्रॉ करा था ना, एलिप्स एलिप्टिकल, ये ऐसा आप बनाओगे और इसके आसपास आप लगाओगे, ऑलरेडी लगे हुए हैं देखो मशीन टूल, अब इन्हें आप मशीन टूल बोलो या वर्क स्टेशन बोलो। सो डिफरेंट वर्क स्टेशंस आर प्लेस्ड इन अ लूप along a automated MHS। ये मैम क्लियर हो एक गया? चीज समझ नहीं आई, अब ये आप जो इसे पहले, इनलाइन। हाँ पहले सुन लो, ये हाँ इसका ठीक है। रिपीटिशन करना। मशीन्स एंड एमएचएस आर प्लेस्ड इन अ लूप लाइन, पहली लाइन आपको क्लियर हो गई, दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ लूप। फिर आप बताओ वर्क पीस कैसे मूव कर रहा है, वर्क पीस इज ऑब्वियसली मूविंग इन, फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन अराउंड द लूप विद द कैपेबिलिटी टू स्टॉप, ठीक है, जहाँ आप उसे स्टॉप करा रहे हो, एंड ट्रांसफर टू एनी स्टेशन। जैसे आपने एक टाइम पे एक वर्क स्टेशन पे जाएगा, एकदम से नहीं हर सारे पे जाना। लोडिंग वर्क स्टेशन से आया, रो मटेरियल है ब्लैक कलर का, ठीक है, वो ब्लैक कलर का यहाँ से आया, यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है, मशीन नंबर 1 पर चला गया, उसकी प्रोसेसिंग हो गई, अगर टर्निंग होनी थी टर्निंग हो गई, फिर वो यहाँ से जा रहा है, इसी पर वापस आ गया लूप पर, ठीक है, देन इट इज़ गोइंग टू मशीन नंबर 2, फिर वापस आ रहा है 3, डायरेक्शन ऑफ वर्क पीस ऐसे रही, 4 5 6, अनलोडिंग एंड लोडिंग इज डन हेयर। अब यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना है, अ सेकेंडरी मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम इज शोन एट ईच वर्क स्टेशन टू परमिट दी वर्क पीस विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन अराउंड दी लूप। तो जो भी लोडिंग और अनलोडिंग स्टेशन है, दे आर लोकेटेड एट दी वन एंड ऑफ द लूप। इन्होंने तो लोडिंग दिखाया है, तो इसका मतलब अब ये वर्ड नहीं है कि अनलोडिंग कहीं और हो रही है, अनलोडिंग के लिए भी तो वो यहाँ आएगा, और यहाँ के बाद जहाँ भी उसे फाइनल डेस्टिनेशन पे जाना है, इट विल गो देयर। ओके, आपके सिलेबस में मिनिमम नोट्स बनाने हैं, लेकिन समझना तो उतना ही है ना आपको भी। यहाँ से लोडिंग हुई थी, ये ऐसा आया, लूप चला, अब वर्क पीस कहाँ गया? आप बोलोगे नहीं मैम तो फिर यहाँ चला गया, नहीं, वो फिर अनलोडिंग स्टेशन पे गया और अनलोडिंग स्टेशन से फाइनल डेस्टिनेशन पे चला गया। और इसका ये आपको समझ में आ गया लूप लेआउट, और ये इस शेप का भी हो सकता है और रेक्टेंगल वाला भी हो सकता है। तो रेक्टेंगल वाला आपके सिलेबस में नहीं है, और होता वो भी अल्टीमेटली लूप ही है, ठीक है, कि यहाँ से आया, लोड हुआ, अनलोड हुआ, ठीक है, लोड हुआ, प्रोसेसिंग हुई पूरी, फिर अनलोड होके चला गया। एक बार इसे एक और बार क्लियर करो लैडर लेआउट में। लैडर लेआउट में क्या है, इट इज़ लुकिंग लाइक अ लैडर, तो आपका आंसर यहीं से चेंज होगा बार बार।
MHS के नाम मैंने नहीं बताए यहाँ पे, बिकॉज वी आर नॉट मेकिंग द लेक्चर कॉम्प्लिकेटेड। MHS क्या क्या हो सकता है आपको दिख रहा है? एक तो क्या हो सकता है, कन्वेयर हो सकता है। लूप लेआउट में कन्वेयर ही तो शो हो रहा है। इस डायग्राम में क्या हो रहा है देखो, ये क्या बनी है, कन्वेयर बेल्ट ही तो बनी है ना आपके सामने। यस, व्हाट इज दिस? कन्वेयर बेल्ट हाँ, मैम, कन्वेयर ट्रॉली भी तो हो बेल्ट, सकता है। लेकिन कुछ और भी हो सकता है। आपने एक लाइन एक एडवांस में सोचा, बीटेक की तरह आपने सोचा कि हाँ कुछ और भी हो सकता है, तो कार्ट भी यूज हो सकती है। कार्ट, टॉ लाइन कार्ट्स होती हैं, ठीक है, तो वो इन फ्लोर एक कार्ट मूव होगी और वो वर्कपीस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है। तो वो सब नहीं पढ़ना कि कितने तरह की मूवमेंट है, वो तो फिर बहुत ज़्यादा एडवांस टॉपिक हो गया ना। तो आप सिर्फ लिखोगे कि दिस इज मूविंग फ्रॉम हेयर टू देयर। MHS के नाम आप नहीं बता रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि ये सिर्फ कन्वेयर बेल्ट नहीं, कुछ और भी हो सकता है। जल्दी से लैडर लेआउट को क्लियर करो। लैडर लेआउट में क्या हो रहा है, अगेन यही तीनों पैरामीटर्स डिफाइन करना। लैडर में आप क्या वर्ड लिख दोगे, दैट this workpiece or machine and the MHS are placed in a ladder shape, ठीक है। how they are placed in a ladder shape आप लिख सकते हो ब्रैकेट में in the as shown in the diagram। फिर वर्कपीस में क्या लिखोगे, वर्कपीस मूव फ्रॉम वन वर्कस्टेशन टू अनदर वर्कस्टेशन एंड the workstations, this is the diagram, ठीक है। आप डायग्राम देखे बिना नहीं समझोगे, this is the diagram। इसे मिनिमाइज करते हैं। इसमें क्या हो सकता है, एक वर्कपीस भी मूव कर रहा है, दूसरे वर्कपीस भी मूव कर रहा है। जैसे यहाँ से देखो, दिस इज द लोडिंग एंड अनलोडिंग वर्क स्टेशन, ठीक है। तो लोडिंग और अनलोडिंग हो रही है। यहाँ से पहले आया रॉ मटेरियल, इनिशियली यहाँ से एंटर करा 1 नंबर, एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, सो इट इज एंटरिंग दी लैडर। लैडर क्या है, एक पाथ है, तो इस पाथ में वो मूव कर रहा है। अब इस पाथ के पास उसके पास चॉइसेस आई है कि वो इस मशीन पर भी जा सकता है, ठीक है, इस मशीन पर भी जा सकता है। सो इट कैन गो टू मैनी पॉइंट्स, लेकिन आपको जो मशीन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आप उसे उस पर्टिकुलर मशीन पर मूव करो। सो दैट इज बीइंग इंस्ट्रक्टेड, ठीक है। तो इन्हें क्या होता है, दीज आर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, दीज आर नोन एज दी पाथ तो नहीं बोलोगे, इसे बोलोगे ब्रेकिंग। मतलब 3-4 ऑप्शंस आपके पास है, ठीक है। आप ऑप्शन नंबर 1 में भी जा सकते हो, 2 में भी जा सकते हो, 3 में भी जा सकते हो। 2 ऑप्शन है। हाँ, तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ से आया, मशीन नंबर 1 पे गया, लेकिन अभी आप एक को स्टडी करो। ऐसे आया, यहाँ से गया, मशीन नंबर 1 पे गया, ठीक है। मशीन नंबर 1 पे उसकी प्रोसेसिंग हो गई है, ठीक है। देन इट इज गोइंग टू अनदर लाइन, ठीक है। तो मशीन नंबर 1 की रिक्वायरमेंट इसकी है, तो वो इसी लाइन पे आगे गया, क्योंकि एरो आगे आ रहा है, इसलिए मैंने बोला है ऑलवेज रीड दी एरो, बस इसमें एरो को ही रीड कर लेना। तो उसके बाद ये अल्टीमेटली जा रहा है बैकवर्ड अनलोडिंग स्टेशन पे। दिस मीन्स ओनली मशीनिंग नंबर 1 वाज रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर वर्कपीस, ठीक है। एक सीक्वेंस नहीं चाहिए थी कि इसको 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे नहीं जाना था, उस समय ये वाला लेआउट यूज़ करेंगे। अब हो सकता है दूसरा वर्कपीस ऐसा है जिसमें दोनों को चाहिए, मशीन नंबर 1 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, या सिर्फ मशीन नंबर 2 चाहिए। अगर मशीन नंबर 2 रिक्वायर्ड है तो आप मशीन नंबर 2 पे जाओ, मशीनिंग करो, ठीक है, बैक फ्लो होगा, वापस आ जाओ, अनलोडिंग हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। फिर 3 पे जाओ, देन अनलोडिंग हो जाएगी। तो ये इस तरह से एक मशीन का कंप्लीट रेक्टेंगल बना हुआ है, ये जो एरोज बने हुए हैं ना, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर लाइंस कहीं पे भी डिफाइंड नहीं, तो आप नहीं लिख रहे, गुड इनफ, आपने डाउट रेज नहीं किया। लेकिन अगर आप लिख रहे हो तो आपको फिर ठीक से लिखना होगा। लेकिन इससे क्या हो रहा है, यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन, ठीक है। अगर यहाँ से एक मशीन के बाद, मान लो मशीन नंबर 1 के बाद उसको 2 पे जाना है, ठीक है, एक ऑप्शन रहेगा, या 3 पे जाना है, एक ऑप्शन रहेगा। सो वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन, मतलब रास्ता आपने बड़ा कर दिया, पाथवेज बढ़ा दिए। अब इसको आप क्या प्रेफर करोगे, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस वो ट्रैवल करे, ठीक है। और मिनिमाइज करो, कोई भी कोलिजन और कंजेशन नहीं हो हैंडलिंग सिस्टम, ठीक है। ये सब चीज़ें कंप्यूटर रिलेटेड कंट्रोल्ड होंगी, एंड यू वांट दैट द ट्रांसपोर्ट टाइम शुड बी मिनिमम। एक वर्क पीस को इतना मूवमेंट नहीं दे दोगे कि वो अल्टीमेटली ज़्यादा डिस्टेंस चल रहा है, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। सो द ट्रांसपोर्ट टाइम हियर इज मिनिमम बिटवीन दी वर्क स्टेशन। तो ये लेआउट मिनिमम पूछा जाता है बिकॉज इट इज़ द टफेस्ट।
अगर आप इसको लेआउट को बनाकर, ठीक है, कम्प्लीटली इतना भी डिफाइन कर रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो क्लियर इन इटसेल्फ। ठीक है, इसके बाद एक और लेआउट है रोबोटिक लेआउट। रोबो लेआउट ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, व्हाट इज़ रोबोटिक। तो ये और बहुत इसकी एडवांटेजेस है। इसमें क्या होगा, एक रोबोटिक आर्म यूज़ होगी, दिस इज़ द रोबोटिक आर्म फॉर मटेरियल हैंडलिंग। तो आप क्या बता रहे हो, दैट इट इज़ यूजिंग MHS एज अ रोबोटिक आर्म भी यूज़ हो रही है, तो मशीन टूल से आया। और जो वर्क पीसेज हैं दे आर ट्रेवलिंग ऑन ए कन्वेयर, तो यहाँ पे एक और MHS लगा हुआ है जो वर्क पीसेज आ रहा है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या होगा, दिस रोबोटिक आर्म विल मूव हेयर, ऐसे एरो बना हुआ है ना, दिस इज मूविंग हेयर, वर्क पीस को पिक किया, यहाँ प्लेस करा, 1 नंबर वर्क मशीनिंग हो गई। फिर रोबोटिक आर्म यहाँ से उसे प्लेस करेगी, पिक करेगी, फिर यहाँ प्लेस कर देगी। ठीक है, फिर ये जहाँ भी जाना है, अनलोडिंग अनलोडिंग होनी है तो वो अनलोड। अब क्या इसमें बच गया, लैडर के अलावा आपका एक क्वेश्चन बच गया, देख लो क्वेश्चन एयर में मैंने ये लिखा हुआ है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इनलाइन लूप लैडर रोबोटिक, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम भी हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। तो आपने टफेस्ट भी कर लिया, ईजीएस्ट भी कर लिया। अब सिर्फ ये मैम बचा है असाइनमेंट राइट और नोट ऑन AGV और ASRS। सो यू विल गेट दिस फ्रॉम दिस PDF। ये रहा PDF, डिफरेंट है, मैं अभी पोस्ट कर दूंगी लेक्चर के बाद। ठीक है, वो आप एक बार गो थ्रू करना, GT क्या होता है, वेरियस डेफिनेशन लिखी है, 5 डेफिनेशन है FMS की, आप कोई भी एक याद करोगे, बाकी सिर्फ देखो। देन दिस इज द कंपोनेंट जो मैंने बताए थे ना, कि वर्क स्टेशन का नाम क्या होता है, प्रोसेसिंग वर्क स्टेशन होता है, मटेरियल MHS, ठीक है, कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, हार्डवेयर, ठीक है, ये सब रीड कर लोगे वाइवा के लिए। AGV का आंसर इसमें है, रोबोट क्यों यूज़ हुआ, यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है। ये सारे AGV हैं, देखो दीज आर AGVs, दे आर ऑल्सो नोन एज वायर गाइडेड व्हीकल, जो मैंने नाम लिया था रेल गाइडेड व्हीकल कहते हैं जिन्हें। ठीक है, दे कैरी अ बैटरी, उसे ऑपरेट करने के लिए वो बैटरी से चलेंगे, ठीक है, टू ड्राइव देयर मोटर। ठीक है, देन दिस इज द 3 डायमेंशनल डायग्राम, जो आपको क्लियरली विजिबल नहीं है तो आप 2 डायमेंशनल बनाओगे कि देयर इज अ AGV। अब इन्होंने तो सिर्फ रेक्टेंगल बना दिया, आप व्हील्स भी लगा सकते हो कि उसमें पहिए भी लगे हुए हैं, और वो मशीन नंबर 1 से वर्क पीस को लेते हुए जा रहा है 2 पे और 3 पे, फिर 4, जहाँ भी जाना है उसे। ठीक है, और दिस इज देन दिस लाइन इज नोन एज अ ट्रैक, तो इसने इसको लेबल कर दिया दैट दिस इज अ ट्रैक ऑफ AGV। इसी ट्रैक पे रेलवे ट्रैक की तरह ही मूव होगा, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, रेल ट्रैक, रेल गाइडेड व्हीकल सिस्टम। और वो थोड़ा पुराना नाम लगता है क्या, रेल गाइडेड व्हीकल, तो इसलिए बोला जाता है AGV, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल। ऑटोमेटिकली ये इसी पर चलेगा ट्रैक, कहीं मशीन नंबर 1 पे कोलाइड नहीं हो जाएगा, जाके 2 पे नहीं कोलाइड हो जाएगा। और लास्ट में क्या लिखा है, ऑटोमेटेड स्टोरेज सिस्टम। तो ये नया क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, नया क्वेश्चन क्या है, ASRS क्या होता है। क्वेश्चन एयर का क्वेश्चन है, असाइनमेंट में तो मैंने ये पुट नहीं करे क्योंकि बहुत कम पूछे जाने वाले क्वेश्चन असाइनमेंट में नहीं आते। ये ASRS क्या होता है, इसमें नहीं पूछा गया है आपसे, क्लास वर्क में क्वेश्चन एयर में पुट हुआ है, व्हाट इज अ ASRS। तो किसी को आता होगा, वाइवा में पूछेंगे ऑटोमेटेड स्टोरेज और रिट्रीवल सिस्टम क्या होता है बताओ। स्टोरेज मीन्स अल्टीमेटली जो वर्क पीस की सारी मशीनिंग हो गई वो कहाँ स्टोर होना है। ठीक है, और उसको स्टोर करने के लिए भी डिफरेंट तरीके हैं, 5-6 टाइप है, वो सब सिलेबस में नहीं है आपके, लेकिन आप यहाँ से एक नोट बना लोगे। कोई स्टोरेज रैक, ठीक है, तो स्टोरेज रैक बने हुए होते हैं, जैसे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, और यहाँ पे वर्क पीसेस को आप प्लेस कर दोगे, और फिर उसके बाद यहाँ से उठाकर उनको पैकेजिंग में लेके जाओगे, और फिर पैकेजिंग के बाद क्या हो जाएगी, डिस्पैच, फिर वो डिस्पैच होके इंडस्ट्री से बाहर जाएगा। तो दैट इज़ दी प्रोसेस। तो इस वाले पॉइंट में आप देख लेना कहाँ इसका आंसर लिखा है, पूरा लेक्चर मत पढ़ना, ये PDF ये रहा, ये आंसर, ये डायग्राम आपको बनाना है। ऐसे रैक बने हुए हैं ना, 1 नंबर 2 नंबर कॉलम बने हुए हैं, यहाँ पे आपने वर्क पीस रखना है, स्टोरिंग वर्क पीस, मशीन नंबर 1 से आया, 2 से आया, ठीक है, देन यहाँ से यहाँ पर आया, इस पे वर्क पीस इस टेबल पे आ गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, AGV टेबल। अगर 1 नंबर रैक में रखना है तो 1 के पास ये चली जाएगी और वर्क पीस पुट हो जाएगा, फिर 2 नंबर 3 नंबर। ठीक है, तो दिस इज अ ASRS गाइड रेल, अगेन ये रेलवे ट्रैक की तरह गाइडेड है, और यहाँ पे वर्क पीस रखा है तो यहाँ चला गया। ठीक है, फिर लेवल नंबर 2 पे आएगा, 2 पे रखना है तो 2 पे चला गया। सो एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक। दूसरा तरीका क्या होता है, हमारे पास एक बुक शेल्फ होता है, हम बुक को 1 नंबर के कॉलम में रखना है तो 1 में रखते हैं,
मैनुअली, फिर अगर 5 नंबर में रखना है तो 5 नंबर पे रखते हैं। ये मैनुअली नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी लंबी हाइट के रैक्स होते हैं, तो वहाँ ह्यूमन वर्कर काम नहीं करता, ये ट्रॉली की तरह चलेगा। किसी ने बोला था अभी बीच में ट्रॉली, ठीक है, तो ये ट्रॉली ऊपर जाएगी, ठीक है, और ये यहाँ पे वर्क पीस को रख देंगे। ये भी इस बुक से भी आप देख सकते हो, कुछ ज़्यादा बताना चाह रहे हैं इसमें, तो आप पढ़ लेना यहाँ से, ठीक है। इनके पास दूसरे डायग्राम है इस बुक में, हमारे पास कुछ और थे। इन्होंने बोला हुआ है इनकमिंग पार्ट, ठीक है, हम बोलते हैं लोडिंग वर्क स्टेशन, लोडिंग वर्क पीसेस। तो जो बेटर लगे आप उसे एक को स्टडी कर लो, हो सकता है यहाँ से आपको लेटर थोड़ी और डिस्क्रिप्शन मिल जाए। तो ये बेटर डायग्राम जो भी लग रहा है तो आप वहाँ से क्लियर कर लो इसे। नाउ दिस इज कंप्लीट। असाइनमेंट का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप आंसर कर सकते हो। कंसेप्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ये मैंने इंक्लूड किया हुआ है यहाँ पे पीडीएफ में। नेक्स्ट लेक्चर इसी पर होगा। आज पीडीएफ फाइल तो पुट हो जाएगी क्योंकि आप लिख ही नहीं पाओगे अगर मैं आज पुट नहीं करूँगी ना। तो ये एक टॉपिक है जिसका नाम मैंने ऑटोमेशन रखा हुआ है। इसमें क्या है, आपको हेल्प मिलेगी। अगर असाइनमेंट का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा है तो वो इसमें ज़रूर मिलेगा। जैसे आपको नहीं मिल रहा ना फ्लेक्सिबिलिटी, 2 पीडीएफ पढ़ ली, उसके बाद भी आंसर नहीं आ रहा फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, क्योंकि वो आपके बोर्ड के क्वेश्चन में आया है। और फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है या कम होती है? वॉइस रिप्लाई फास्ट ज़्यादा होती है। ज़्यादा होती है। तो अब ये से बनाओगे मशीन फ्लेक्सिबिलिटी किसे कहते हैं? जब एक मशीन में ऐसी एबिलिटी हो कि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्ट के स्टाइल्स बना सकता है, नंबर ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा कर सकता है, तो नंबर ऑफ वर्क पीसेस भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बना सकता है, ठीक है। एक मशीन सिर्फ टर्निंग करे तो वो सिर्फ टर्निंग के ही वर्क पीस बनाएगी। एक मशीन टर्निंग करे, मिलिंग करे, बहुत कुछ करे तो वो बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल वर्क पीस देगी हमें, ओके। Production flexibility, it is the range of part style that can be produced on the system. Mixed flexibility means कि मिक्स कर सकते हो कि नहीं, अभी वर्क पीस कुछ और बन रहे थे, थोड़े टाइम बाद कुछ और वर्क पीस बन रहे हैं, ऐसा कर सकते हो आप एक ही सिस्टम से, एक ही एफएमएस से। तो इट इज़ द एबिलिटी टू चेंज द प्रोडक्ट मिक्स while maintaining the same production quantity that is producing the same part. एक बार लर्न करोगे याद रहेंगी फिर आपको। प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स इट इज़ द एबिलिटी टू चेंज अ न्यू सेट ऑफ प्रोडक्ट इकोनॉमिकली एंड क्विकली इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन मार्केट, ठीक है। मार्केट में रिक्वायरमेंट अभी कुछ और है, आपने लिया है फ़ोन, ठीक है, आपको उसकी मेमोरी साइज़ कम लग रहे हैं, तो अब वो कंपनी पहले वाले मॉडल में ही फ्लेक्सिबिलिटी लेके दूसरा मॉडल बना देगी, रादर एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करने लग जाए, ठीक है। तो ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है उसके पास। राउटिंग फ्लेक्सिबिलिटी, राउटिंग का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। तो उसका मतलब है इट इज़ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस पार्ट ऑन एन ऑल्टरनेटिव वर्क स्टेशन। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है इतने सारे, आप अगर सिंगल मशीन सेल लगा कर रखा है, ठीक है, और आपने एक, जिसमें एसएमसी में क्या होता है, सिंगल मशीन सेल, तो जो अगर एक ही मशीन सेल लगा हुआ है और मान लो एक ही बाई चांस वही ख़राब हो जाए, ठीक है, तो फिर ऑप्शन ही नहीं है, जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक मशीनिंग होगी ही नहीं। इंडस्ट्री फिर में आप बैठे रहेंगे सारे वर्कर्स, कोई काम नहीं होगा, ठीक है। अगर 2 से 3 वर्क स्टेशन है तो कम से कम एक पे मशीनिंग नहीं हो रही, आप दूसरा रन कर सकते हो। तो दिस इज़ राउटिंग फ्लेक्सिबिलिटी, दैट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वर्क पीस ऑन एन ऑल्टरनेटिव वर्क स्टेशन, दूसरे पे काम करो, बिकॉज वन वर्क स्टेशन इज गेटिंग अ ब्रेकडाउन मीन्स ख़राब हो गया, टूल फेलियर हो गया, अदर इंटरप्शन, ख़राब नहीं हुआ पूरी तरह, कुछ अभी इंटरप्शन हो गई है उस पर्टिकुलर स्टेशन पे, ठीक है। तो राउटिंग आपको नाम याद रहेगा। वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होगा, आपको नाम से क्या क्लियर हो रहा है, वॉल्यूम मीन्स क्वांटिटी। सो व्हेन यू आर वेरिंग द प्रोडक्शन वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट टू अकोमोडेट चेंजेस इन डिमांड, क्योंकि डिमांड बढ़ती जाएगी कंपनी की आज, ठीक है। 10,000 मोबाइल हैं, हो सकता है यही मॉडल आप 20,000 डिमांड बढ़ जाए, तो वॉल्यूम की भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आपका एफएमएस इतना ही बनाता है, इतना है, ठीक है, तो उसको वॉल्यूम चेंज करने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। एक्सपेंशन फ्लेक्सिबिलिटी को भी याद करोगे, सिस्टम कैन बी एक्सपेंडेड फॉर ए टोटल प्रोडक्शन वॉल्यूम। तो नाउ सम viva questions can be answered as shown in this diagram, like this one diagram is the main diagram, or it is the simplest form of diagram for the inline layout system. So here it is showing that the work is flowing in one direction, okay. So these are the starting work piece or the work parts. So the raw materials is being
loaded here and it enters the part transport system. On this part transport system, the workpiece is moving. So this is the main primary material handling system. So in this diagram, there is no secondary material handling system. And here the loading and unloading stations are also shown. Okay, so the short forms are written here. The load means the parts loading station, unload means the part unloading station, and MAN here stands for manual. So this is a manual station. This means unloading of the workpiece from this primary material handling system is done by manually by the worker itself to the station. Similarly, the loading is manual, and MACH here stands for the machining station, and AOT stands for automated station. This means this machining station is a automated station. So different workstations, different machining stations are attached here. A primary material handling system is there. These are the completed workpieces. Now there was a question like, can these workpieces be transferred in both the directions or only in one direction? So yes, they can be transferred in both the directions also, as shown in the another diagram. For this purpose, we have to attach a different secondary material handling system in the previous arrangement. So you can watch in this diagram that this is the loading and unloading manual station, and now the starting workpieces are entering here on this part. This is known as primary line or primary MHS, and on this primary MHS the workpieces are moving. So the main function, as we have discussed in the lecture, that the main function of the primary MHS is to transfer the workpiece from one machining station or one workstation to another workstation by the help of this transfer line, this primary MHS. Now when we are attaching a secondary material handling system here, as shown in this shape, this workpiece can be moved from the primary material handling system to the workstation, but by the automation. So it is done automatically, not manually. So a secondary material handling system is being provided at each and every workstation, and this is one of the most possible arrangement to have a greater routing flexibility, because the workpiece can now move in both the directions. But the first one is the most generally used, and in our syllabus this first type is there, but you should know both the types with the meanings. Then let us zoom this diagram. There is a loop type of layout. This was discussed. Okay, so again this loop type of layout is having a secondary material handling system, a secondary MHS at each workstation. So this is a machining workstation, automated machining workstation, and here the workpieces are loaded, and after loading the workpiece is entering to the machining station and it is being processed. After machining, the workpiece is getting transferred from this workstation to the primary material handling system, primary MHS.
So again, this is a secondary material handling system. So you can label this part as secondary material handling system. And this loop is the primary MHS or the primary material handling system. So in loop layout, the workstations are organized in a loop. We all already have studied this. That is in the shape of a loop. The workpieces are flowing in one direction around the loop with the ability to stop and be transferred to any station. And a secondary material handling system like this, they are installed at every workstation. Now there is a variation in this loop layout. It can be of a rectangular layout also. This is a Viva question for you, that what is a rectangular layout. So the rectangular layout is just similar to the loop layout. The loading and unloading stations are typically, they are located at the one end in the first part, that is the loop layout. Here in the rectangular layout, the loading workstations are at one end and the unloading workstations are at the other end. And again, these are the machining workstations, automated machining workstations are here. And these are the pallets on which the workpiece is being placed. So I'm trying to label it, all the pallets with the workpieces. So this arrangement is used to return this pallet to the starting position in a straight line machine arrangement. From here there is a return loop and this is a forward loop. So the main difference between the primary material handling system and the secondary material handling system is being cleared here, that in the primary material handling system only the workpiece is getting transferred from one workstation to another workstation, but in the secondary material handling system like this, the workpiece is being transferred from the primary material handling system to the workstation.